न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू आउटसाइड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस हैज डबल मेम्ब्रेन. Nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. Contains chromosomes. The nucleus is also known as the brain of the cell. Nuclear nuclear nucleus pores देख सकती हो. न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर. क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell is poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acids is called a nucleoloid. हो गया, ये तो हो गया. इधर नहीं देखे थे ना. तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. अब बना किन चीज़ों का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, पेरिफेरल प्रोटीन, glycolipids allow or permit the entry and exit of materials in and out of the cell, transfer of gases like oxygen and carbon dioxide through diffusion. Organelles, a cytosol, cytoplasmic inclusions, microfilament, microtubules, intermediate filaments. क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? अब प्रेजेंट्स इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर होता है ये क्रोमैटिन मटेरियल. विजिबल अंडर माइक्रोस्कोपिक ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेपरेटेड into daughter cells made up of DNA and histone proteins. DNA wraps around histone proteins to form nucleosomes, which are the basic unit of chromatin. Chromatin's main function pack DNA into a more compact form to prevent tangling. Chromatin fibers can unwind for DNA replication and transcription. Cell and chromosome structure, cell nucleus, gene, DNA, chromosomes. Centrosome क्या होता है? Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles present in animal cells. The centrioles form the basal body of cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. क्रोमोसोम्स जो होता है वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है, विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड. और तभी दिखता है जब जो है सेल में विभाजन होता है, सेल जब डिवाइड होता है तब. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन का बना होता है. क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड molecules. DNA molecules contain information necessary for constructing and organizing cells. Functional segments of DNA are known as genes. इसके जो functional segments हैं उसको gene कहते हैं. The fluid mosaic model is a biological model that explains the structure and function of the cell membrane. Proposed by Singer and Nicholson 1972, widely accepted as fluid mosaic model. Proteins are embedded in the lipid bilayer in a random distribution, forming a mosaic-like structure. The phospholipids have hydrophilic heads facing outward and hydrophobic tails facing inward. अब फ्लूइड मोसाइक मॉडल है ये. सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं. सेल वॉल algae. Cell wall made up of cellulose, pectin, galactants, hemicellulose, mammons, silica and minerals like calcium carbonate. बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ. बैक्टीरिया सेल हैज़ 3 layer envelope: glycocalyx, cell wall, cell membrane. Cell wall is an external layer that gives shape, rigidity to the cell and protects. अब shape उसी सेल को देगा जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है. जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है तो उसको शेप जो देगा वो सेल मेम्ब्रेन देगी. तो ये शेप देता है जिसके अंदर सेल वॉल होता है, और रिजिडिटी to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection, and is mainly made of cellulose, which is a complex substance and provides structural strength to the cell.
helps protect the cell in hypotonic external medium, helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. Fungi cell wall made up of chitin या chitin. Plants cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, pectins, lignin and protein. ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होता है बैक्टीरिया में, मेड अप ऑफ पॉलीसैचराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोकैलिक्स स्लिम slime layer, loose thick capsule made of polypeptides. Bacteria cell has two types of cell membrane: mesosomes, DNA replication, cell membrane formation, respiration, secretion. Mesosomes are analogous to mitochondria. Flagellum, hair-like motility organelle that helps bacteria move through liquids. अब ये motility होगा या mobility होगा? Hair-like मोटिलिटी होगा, मोबिलिटी ऑर्गेनली दैट हेल्प्स बैक्टीरिया मूव. अच्छा, मूव यहाँ दे दिया तो ये मोटिलिटी होगा. ऑर्गेनली दैट हेल्प्स बैक्टीरिया मूव थ्रू लिक्विड्स एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस. फ्लैगेलम मेड 3 substructures: hook, a hook-shaped structure at the proximal end of the filament that enters the cell wall and attaches to the basal body. Basal body, flagellum inside the cell wall, firmly bound into the cell envelope. It contains the rotary motor. Filament, a long thin structure made of the protein flagellin. The 4 types of bacteria are based on their shape: Bacillus, rod-shaped bacteria; Coccus, spherical और oval shaped bacteria. अब 4 प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनके शेप के आधार पर उनको बांटा गया. तो बैसिलस जो कि रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, कॉकस जो कि स्फेरिकल होते हैं और ओवल शेप्ड के होते हैं, स्पिरिलियम जो कि स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं और विब्रियो कर्व्ड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं. अब ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस क्या होता है? बैक्टीरिया स्टेन्ड विथ क्रिस्टल वायलेंट डाई, आयोडीन, अल्कोहल वॉश. Gram positive bacteria retain purple stain. Gram negative bacteria do not retain purple stain. Shape of bacteria, अब ये कॉकस, कॉकी, बैसिलस और ये अदर जो प्रकार के हैं. प्लांट सेल एनाटोमी है दिया हुआ है, प्लांट के सेल का एनाटोमी दिया हुआ है. तो वैक्यूल होता है, बड़ा होता है, न्यूक्लियस होता है, वेसिलस होता है, और क्या होता है? राइबोसोम्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, पेरोक्सिसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट. प्रोकैरियोट में क्या होता है? तो प्रोकैरियोट्स प्रो प्रिमिटिव, कैरियोट्स न्यूक्लियस. अब अनडिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड यूनिसेल्युलर होता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. Prokaryotic cells may vary greatly in shape and size. Single cellular chromosome and divide, multiply rapidly. Genetic material और DNA is naked, smaller in size. Example इसके हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, माइकोप्लाज्मा. ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं. अब यूकैरियोटिक में देखते हैं. यूकैरियोट्स, यू ट्रू और कैरियोट्स न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होता है. प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट सेल वॉल्स, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, मोर देन वन लीनियर क्रोमोसोम्स एंड स्लोअर सेल डिवीजन. जेनेटिक मटेरियल और डीएनए इज कंटेन्ड विद इन द न्यूक्लियस, कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज. प्लांट, एनिमल, फंगाई, प्रोटिस्टा. ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अब प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ यूकैरियोटिक सेल है. सेल, राइबोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन कॉमन इन बोथ. राइबोसोम्स दोनों में होता है, सेल वॉल दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, तो कॉमन है ये चीज़ें. Viruses lack membrane. They do not show characteristics of life until they enter a living body, use its cell machinery to multiply. Animal cell structure यहाँ दिया हुआ है. तो क्या है? सेंट्रियोल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक ER, SR, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइक्रोविली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैक्यूल, सेंट्रियोल्स.
और न्यूक्लियस होता है माइक्रो, इसमें क्या सेल वॉल नहीं था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। गोल्जी कॉम्प्लेक्स वैक्यूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल वॉल नहीं है। सेल ऑर्गेनेलीज पे आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? तो इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स and sheets. It looks like long tubules or round or oblong bags, vesicles. ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. Has two types, SER and RER. Smooth endoplasmic reticulum और rough endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? रफ सरफेस ड्यू टू प्रीसेंस ऑफ राइबोसोम्स होता है इसके ऊपर। ऑन द सरफेस राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये। ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स बनाता है पैकेज्ड इनटू वेसल्स एंड डायरेक्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? स्मूथ सरफेस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स इसमें नहीं होता तो ये इसलिए स्मूथ है। ऑन द सरफेस हेल्प्स इन लिपिड फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशन में बनाता है। SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। In animal cells, lipids like steroidal hormones are synthesized in SER. Golgi apparatus होता है, it is a system of membrane-bound vesicles, flattened sacs and arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. ये cisterns के रूप में होता है ऐसे ऐसे करके गोल्जी apparatus। और फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमेलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया गोल्जी apparatus। तो मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER के समीप ही रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी apparatus। फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स गोल्जी apparatus बनाता है। स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग इन वेसिकल्स कन्वर्ट सिंपल शुगर्स इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। गोल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स ऑफ सिस्टर्नी ऑफ 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. Golgi apparatus is the important site of the formation of glycoproteins and glycolipids. तो गोल्जी apparatus में ही क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। तो गोल्जी सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus with a distinct convex cyst or the forming phase and the concave trans or the maturing phase. अब लाइजोसोम क्या होता है? लाइजोसोम्स होता है कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एंड फॉरेन मटेरियल वर्न आउट ऑफ द, इसको ये ना ब्लास्ट हो जाता है, सुइसाइड बैग भी इसको कहते हैं सेल का। तो ये स्ट्रक्चरली लाइजोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर होती हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है इसको एंजाइम को। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं लाइजोसोम्स को। सुइसाइडल बैग कहते हैं इसको सेल का, लाइजोसोम को। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes optimally active at acidic pH. Hydrolysis क्या होता है? Esteresis including lipase, phosphatase, glycosidases, peptididases and nucleosidases. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. तो हम लोगों ने लाइजोसोम्स, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब सेल के अंदर मिलते हैं। ये सारे के सारे चीज़ जो हैं, जो ऑर्गेनेलीज हम लोग देख रहे हैं अभी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER SER करके दो है। और गोल्जी apparatus का क्या काम है? तो वो क्या करता है? स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग इन वेसिकल्स। और ये लाइजोसोम तो सुसाइड बैग है सेल का, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। और ऊपर हम लोगों ने देखा था क्या? एनिमल सेल स्ट्रक्चर देखा था। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस देखा था। कॉमन दोनों में क्या होता है? तो राइबोसोम दोनों में मिलेगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही प्रकार के जो सेल हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो प्रिमिटिव
जो अभी फॉर्म नहीं हुआ है, और यू ट्रू न्यूक्लियस जो कि फॉर्म हो चुका है सेल अच्छे से। तो प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के कुछ जो एग्जांपल्स हैं, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, माइकोप्लाज्मा, और ये यूकैरियोटिक के प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई और प्रोटिस्टा। तो अब हम लोगों ने देखा सेल वॉल के शेप, और ये बैक्टीरिया में क्या किस का बना होता है सेल वॉल, ये इसमें फंगाई में किस चीज़ का बना होता है, और प्लांट में तो बैक्टीरिया में बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, फंगाई में बना होता है काइटिन या चिटिन बोल सकते हैं, और प्लांट्स में बना होता है किसका, सेल्यूलोज का। तो ये पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। फ्लूइड मोसाइक मॉडल, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच। अगर देखा जाए एसएससी में तो क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, और साइटोसोल, सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने देखा, ऑस्मोसिस के प्रकार देखे, और डिफ्यूजन देखा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का फ़र्क देखा, और क्या, और तो देख ही लिया। अब बस आज इतना ही देखते हैं, ओवरलोड ना हो जाए।